So in the previous classes we were discussing about the applications of differential equation, in fact geometrical applications of the differential equation. Now we take a previous year JEE question that was asked in the year 2004 of subjective exam. A curve passes through the point 2, 0 and is having the slope at point x, y is x plus 1 whole square plus y minus 3 upon x plus 1. The question is, find the equation of the curve. You have to find out the equation of curve as well as you have to find out the area bounded by the curve and x-axis in the fourth quadrant. Curve and x-axis in the fourth quadrant. एक बात आपने और ऑब्जर्व करी कि दैट्स अ मिक्स क्वेश्चन. आपसे पहले कहा गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है आपको. यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड इफ योर इक्वेशन ऑफ कर्व इज करेक्ट देन ओनली द एरिया इज गोइंग टू बी करेक्ट. एरिया भी आप जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट ठीक नहीं आया तो एरिया भी कहां से ठीक आएगा. इक्वेशन ही अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व करेक्टली, हाउ कैन यू गेट द एरिया करेक्टली. तो मिक्स क्वेश्चन है. स्लोप इज गिवन एट सम पॉइंट x, y is x plus 1 whole square plus y minus 3 upon x plus 1. In fact dy by dx is given to you. That dy by dx is equals to x plus 1 whole square plus y minus 3 upon x plus 1. डिफरेंशियल इक्वेशन है. आपने ऑब्जर्व किया इट इज इन विच फॉर्म. बहुत ज़्यादा सोचना नहीं हुआ आपको, क्योंकि dy by dx माइनस ऑफ y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x plus 1 whole square minus 3 upon x plus 1, and you are getting a differential equation that's a linear differential equation. एक linear differential equation and linear differential equation in y. ये y में linear है. If you have to find out the, now you have to find out the integrating factor to, जब आपको समझ में आ गया कि ये linear differential equation है तो आप तुरंत इसका integrating factor find out करेंगे. e raised to power integral of minus of 1 upon x plus 1 dx, that is going to be e raised to power minus of 1 upon x plus 1, here dx upon x plus 1, that will be ln mod x plus 1. माइनस साइन को आपने एडजस्ट किया तो इट विल बिकम, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कमिंग एज 1 upon x plus 1. I have taken a plus sign here, 1 upon x plus 1. Integrating factor is 1 upon x plus 1. Now you are going to write the solution of for that integrating differential equation. That solution is y into integrating factor, y into 1 upon x plus 1 is equals to integral of q is there, which is x plus 1 whole square minus 3 upon x plus 1 into integrating factor dx. What is the integrating factor? That is 1 upon x plus 1. So it will be direct लिखने चलेगा q into integrating factor dx, q x plus 1 whole square minus 3 upon x plus 1 multiplied with 1 upon x plus 1. So it will be y upon x plus 1 is equals to, इंटीग्रेट करना है यार आपको सीरीज से, x plus 1 whole square upon x plus 1 whole square, that will be 1 minus 3 upon x plus 1 whole square dx. ठीक. So y upon x plus 1 is coming as integral of 1 is x, integral of 3 upon x plus 1 whole square, x plus 1 raised to power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, it will become plus 3 upon x plus 1. integration में दिक्कत नहीं. And do not forget to add the constant of that integration, which is c here. It is given that that curve is passing through the point 2, 0. curve 2, 0 से pass कर रहा है, that is to find out the value of constant. तो curve is passing through the point 2, 0. in place of x 2 रखिए, in place of y 0 रखिए, and tell me the value of c. c की वैल्यू बता दीजिए. 3 minus 3 minus 3. So
2,0 आपने सेटिस्फाई किया, यू आर गेटिंग c -3 एंड प्लीज अरेंज द इक्वेशन नाउ, विच इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट हियर. c की वैल्यू पुट कर दीजिए -3, passing through 2,0 is given only to find out the value of constant. So just take the LCM and just give me the value of, yeah, you have to give me the equation of curve. Yes, c की वैल्यू -3 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए. y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. हो जाएगा ना. सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेई सब्जेक्टिव मेंस एग्जाम का सवाल. तो अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. मेरा पॉइंट ये था. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट, ऑल्सो फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. आप कर लेंगे बशर्ते आपकी इक्वेशन ठीक आ जाए. अगर ये इक्वेशन इनकरेक्ट है तो रिजल्ट तो गलत ही आना है. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा पैराबोला, y प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 is equals to y plus 1 equals to x minus 1 whole square. That vertex of that parabola, कैसा parabola, that's the opening upward parabola having vertex 1 comma minus 1. 1 comma minus 1 is the vertex of that parabola. An opening upwards parabola. ठीक. कर्व स्केच कर लें. ओपनिंग अपवर्ड से एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, y 0 रख दीजिएगा. 0 टू 2 पॉइंट्स मिल गए आपको. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. साफ साफ दिया, कहीं कोई लोड नहीं है. दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड हियर. लेट्स से OVA. दिस इज द एरिया एक्चुअली रिक्वायर्ड. और ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है. एरिया बाउंडेड विथ एक्स एक्सिस है. ये स्ट्रिप कंसिडर करिए आपने ऑफ विथ dx. सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट. एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, यस प्लीज, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 y dx and y of curve is x square minus 2x dx. That is the result. ठीक है ना. सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर. पुट द लिमिट्स, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. मिक्स क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज एरिया. नाउ द क्वेश्चन इज अगेन a previous year JEE exam question in the year 2010. I think it was asked that f be a real valued differentiable function on the set of real numbers such that f of 1 is equals to 1. f of 1 is given as 1. Also it is given that y intercept of the tangent at any point p x comma y on the curve y equal to fx is equal to cube of abscissa of p. y intercept of tangent at any point p on the curve. आप बताएं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ. शायद हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कशन किया है. intercept made by the tangent on the x axis, intercept made by the tangent on the y axis, right? So can you tell me the intercept made by the tangent on the y axis? It is given that y intercept of the tangent at any point p x comma y is equals to cube of the abscissa. Yes please. y minus x dy by dx. कोई बहुत विशेष बात नहीं. इन द प्रीवियस क्लास आल्सो वी हैव टेकन सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्टली ऑन द y intercept made by the tangent. Equation of tangent you can write. Intercept made by the tangent on the y axis, keep x 0, capital X 0, you will be getting this y minus x dy by dx. उसने कहा it is equals to cube of abscissa of p. p point to p point you have taken as x comma y on the curve, और इस p point का abscissa which is x और उसके क्यूब के बराबर है. तो y minus x dy by dx is equals to x cube. ठीक है यार. अब हम देख लेते हैं इट इज इन विच फॉर्म. मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत वाला कार्यक्रम है कहीं से कहीं तक भी. ये तो सीधे सीधे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिख ही रहा है आपको, राइट? सो dy by dx
चलिए x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है ना x dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। x dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y प्लस एक्स क्यूब, so it will be minus of x cube. Linear differential equation in y, it is going to be dy by dx minus of y by x is equals to minus of x square minus of x cube divided by x, that will be minus of x square. Integrating factor मुझे लिखना है, that integrating factor is e raised to power integral of minus of 1 by x dx, that will be equals to e raised to power minus of ln x, and integrating factor is 1 by x. It should be e raised to power ln mod x, लेकिन हम जानते हैं integrating factor लिख रहे हैं, so we are taking it ln x only. It is 1 by x is the integrating factor there, and to write the solution of that differential equation, it is going to be y into integrating factor is equals to q, this is q into integrating factor dx plus c. Simple integration is there, it will be y by x minus of x dx, तो ये जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट. इट इज गिवन दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन. एफ ऑफ वन वन दिया है, एफ ऑफ वन वन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू वन, वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू वन. यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. व्हाट इज दैट कांस्टेंट यू आर गेटिंग, सी की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2. फाइन, सो यू गॉट द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन. And according to the question, it has been asked that find out the value of f of -3. तो भैया यार fx की वैल्यू या y की वैल्यू अगर आपको मिल गई है, c की वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो y रिक्वायर्ड है आपको कहाँ पर, f of -3. f of -3 that means that x equals to -3. What is the value of y? आसानी से बना लेंगे. क्या आ रही वैल्यू, -3 पर वैल्यू 9. बढ़िया, सिंपल क्वेश्चंस है ना. और ये सब प्रीवियस ईयर जेई के सवाल बता रहा हूं मैं आपको. और क्वेश्चन का अब पॉइंट यहां पर ये है कि y इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट, तब ये आपको y इंटरसेप्ट में आप कंफ्यूज हो गए या वो फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो फिर बात ही आगे नहीं बढ़ पाएगी, फिर तो गलत ही होगा. अदरवाइज तो सिंपल सा सवाल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. Now the question is again a previous year question. A normal is drawn at a point p x comma y of a curve. ठीक है. It meets the x-axis at q. That normal meets the x-axis at q. If pq has constant length k, then you have to find out the differential equation, and also you have to find out the equation of curve passing through the point 0 comma k. सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा, ए नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई ऑफ अ कर्व. दैट इज द टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल, एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी, दैट पॉइंट इज एक्स कोमा वाई, एंड दैट मीट्स the normal is drawn at a point p x comma y of a curve. It meets the x axis at point q. pq has a constant length k. pq की लेंथ कांस्टेंट है k. डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है और एज वेल एज आपको कर्व सॉल्व भी करना है. pq इज व्हाट, तो आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से q पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है नॉर्मल x एक्सिस को, दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ नॉर्मल. और लेंथ ऑफ नॉर्मल हम लिख सकते हैं, यस, लेंथ ऑफ नॉर्मल दैट इज मॉडुलस ऑफ y इंटू 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर.
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सीखा आपने, और अगेन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में दोबारा सीखा, और ये लेंथ ऑफ नॉर्मल के बराबर है। सॉल्व करना है, जरूर हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग। इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। अब तो सिंपल सॉल्व कर रहे हैं यार हम। dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज कमिंग एज, वन को राइट साइड में शिफ्ट किया, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। So dy by dx is coming as plus minus root over k square minus y square upon y. That is the differential equation, first order differential equation which you are getting, and that is in which form? It's a simple variable separable form, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। Function of y with dy and function of x with dx can be separated easily. So it will become y upon root over k square minus y square dy is equals to plus minus dx. ये इंटीग्रेट किया आपने, k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको t स्क्वायर रख लीजिए या t रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू t माइनस ऑफ 2y dy इक्वल्स टू dt। सिंपल इंटीग्रेशन है, तो y dy विल बिकम dt अपॉन माइनस 2 रूट ओवर t इक्वल्स टू प्लस माइनस x, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। t रेज़ टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल आप लिख सकते हैं, t रेज़ टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। t की वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिएगा k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। And to find out the constant, it has also been given that that curve is passing through 0, k। ठीक है भाई, x को 0 से और y को k से रिप्लेस कर दीजिएगा, you will be getting the constant। ठीक है ना, it's a simple variable separable form और simple integration is involved there। But the only point is, if you are not comfortable with this, what is this length of normal, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन हो चुका है, 0, k डाल दीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द कांस्टेंट और रिजल्ट आ जाएगा। ज्योमेट्री बेस्ड एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। द टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑफ अ कर्व मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट A। द टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑफ अ कर्व मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट A and the line parallel to y axis through point P meet the x axis at B. Area of triangle is a constant. You have to form the differential equation form करना है, as well as you have to prove that that equation of curve is coming as a hyperbola. डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो कर्व की इक्वेशन है हमें प्रूव करना है कि वो एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। उससे पहले तो हम समझ लें कि इक्वेशन क्या है। So tangent at a point P of a curve meets the y-axis at point A. At point P, that point we have taken as x, y, और वो y-axis को meet कर रही है point A के ऊपर। ठीक है। And a line parallel to y-axis through P, line parallel to y-axis through P meet the x-axis at point B. y-axis के पैरेलल लाइन थ्रू B meet the x-axis at point B। ठीक, ये y-axis के पैरेलल लाइन जो x-axis को मीट कर रही है B पॉइंट के ऊपर। It is given that area of triangle OAB, which is clearly a right angle triangle, is constant।
से के बराबर लिख दिया मैंने, ओ ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है और सॉल्व करना है। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दैट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल which is nothing but half OA into OB, ठीक है ना, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल के। OB कितना है? OB x है, इतना मत सोचिए, OB इज नथिंग बट x, दैट इज x and this is y. How can we find out OA? Intercept made by the tangent on the y axis again. अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने यूज किया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट x0, तो यस व्हाट वाज इट, हाफ, अभी अभी लिखा था हमने। इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द y एक्सिस, y माइनस एक्स dy by dx into OB x is equals to k। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, डिफरेंशियल इक्वेशन तो फॉर्म कर ली हमने, अभी देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बस किस फॉर्म में है और उसे सॉल्व करना होगा। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2k। क्या लगता है किस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है? दैट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्ट लिखना चाहूंगा dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो माइनस ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू 2k माइनस 2k, माइनस 2k अपॉन एक्स स्क्वायर। लीनियर के फॉर्म में ले आया यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो बिफोर फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये वो जरूरी बात, प्लस माइनस कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स e raised to power minus of ln x. Integrating factor is coming as 1 by x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाय x और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है हमें। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3, एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 का इंटीग्रल एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस प्लीज, 2k बाय एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3, तो हाँ x रेज़ टू पावर माइनस 3, x रेज़ टू पावर माइनस 3 दैट विल बी माइनस 3 प्लस 1 x रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है, अपॉन माइनस 3 प्लस 1 विच विल बी माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर, बहुत सोचना नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट। बट ये देखिएगा कि सिंपल इंटीग्रेशन हमने बोल दिया लेकिन उसमें एरर नहीं हो जाए यार। दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन है। दैट कर्व इज एक्स वाई इक्वल्स टू k प्लस सी एक्स स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि दैट इक्वेशन ऑफ कर्व इज नथिंग बट अ हाइपरबोला। एनीबॉडी कैन सजेस्ट मी हाउ कैन वी प्रूव दैट दैट कर्व इज अ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला? कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? C0 क्यों? C कुछ भी हो सकता है।
ये कुछ भी हो सकता है. हाउ कैन यू डिसाइड C and K both are some constants. So ठीक है. How can you decide that this represents hyperbola? चार options होंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. सर्कल तो नहीं है, आप देख के बता दोगे, बट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हाउ कैन यू डिसाइड? नॉट सी. अरे आप लोग भूल गए, ये ध्यान रखिएगा. सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है, जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कर्व ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. That second degree equation represents pair of straight lines provided the determinant AHGHBF GFC becomes 0. That second degree equation represents circle when that determinant is not equals to 0. Coefficient of x square is equals to coefficient of y square and there is no term of xy present. That equation represents parabola when h square equals to AB. It represents ellipse in case of h square less than AB and hyperbola in case of h square greater than AB. बहुत जरूरी बात है, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाता है मामला. Anybody can suggest me what is h square here? h क्या है यहाँ पर? 2hxy. तो 2h की वैल्यू है यहाँ पर 1. But so that 2h is coming as 1. h equals to half. Value of a की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ x square which is minus c there. b, there is no term of y square present there. y square की term present नहीं है. 0. h square is clearly greater than ab. h square ab से greater है and that is going to represent a hyperbola. That is the approach. ठीक है. इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट आपके सामने थी कि जो प्रूव करना है दैट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज द हाइपरबोला, और आप में से काफी सारे लोग कंफर्टेबल नहीं थे, और ऐसा कई क्वेश्चंस में होगा जहां पे आपको कर्व की इक्वेशन और चार ऑप्शंस होंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम कई सारे चार ऑप्शंस होंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. एंड अगर आपको कंडीशंस कंफर्टेबल नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे. लोकस ऑफ दैट कर्व, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. ये ध्यान रखिएगा दैट सेकेंड डिग्री कर्व एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. दैट्स द सेकेंड डिग्री कर्व. बिकॉज x प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन. टू डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कंडीशन इट विल रिप्रेजेंट डिफरेंट कर्व. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा. Pair of straight lines provided the determinant, अगर इसको डेल से प्रेजेंट कर रहा हूं, is equals to 0 which is AHG HBF GFC. That's the symmetric determinant. In fact, diagonal elements के about अगर elements को देखते हो symmetric है, वो AHG HBF GFC, that determinant is coming as 0. It represents pair of straight lines. ये pair of straight lines को represent करता है. यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a is coefficient of x square, b is coefficient of y square, 2h is the coefficient of xy, 2g is the coefficient of x, 2f is the coefficient of y and c is the constant term there. सेकेंड डिग्री अपने मन मर्जी से चेंज नहीं करेंगे इसमें आप कुछ भी. तो that's the condition for pair of straight lines. That determinant must be equals to 0. For circle, that same second degree equation represents circle provided the determinant is not equals to 0, as well as coefficient of x square is equals to coefficient of y square and there is no term of xy present there. x square और y square का coefficient same होगा, a must be equals to b and there should not be any term of xy there. Parabola, again the determinant is not equals to 0, h square equals to AB. For ellipse, h square is less than AB. And in case of the hyperbola, जो कि अभी present previous question में required था, in case of hyperbola the determinant is not equals to 0 as well as h square is greater than
ए बी, और ये कंडीशंस बहुत परफेक्ट होना चाहिए आपको। लेट्स टेक सम सिंपल क्वेश्चंस अगेन बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ओनली। द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व एट each point, yeah, at any point the normal to a given curve at a given point pass through a point 2 comma 0. Normal is passing through the point 2 comma 0 and that curve is passing through the point 4 comma 5. You have to form the differential equation and you have to find out the equation of curve also. Simple सी बात है। Normal at any point p x comma y is passing through the point 2 comma 0. देखिएगा, that point is x comma y. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बड़ा सिंपल सा सवाल है, पर देख लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। द क्वेश्चन इज द नॉर्मल टू एनी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट एनी पॉइंट p point x comma y passes through the point 2 comma 0 and the curve is passing through the point 4 comma 5. Form the differential equation and find the equation of curve. देखिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, पहले समझ लीजिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे पहली बात y माइनस वाई इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, नॉर्मल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो माइनस ऑफ 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, माइनस ऑफ 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक, अब ये कहा गया है कि दैट नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 0, सॉरी नॉट पासिंग थ्रू, यस इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 0। तो अब ये इसका क्या मतलब हुआ? दैट नॉर्मल इज पासिंग थ्रू 2 कॉमा 0। एनीबडी कैन सजेस्ट मी नॉर्मल passes through 2 comma 0. नॉर्मल अगर 2 कॉमा 0 से पास हो रहा है मतलब 2 कॉमा 0 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अब 2 कॉमा 0 कहां सेटिस्फाई करेगा? कैपिटल X इक्वल्स टू 2 और कैपिटल Y 0। स्मॉल x स्मॉल y में मत रखिएगा, द रीजन इज वो तो एक पॉइंट है कर्व के ऊपर, दैट नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 0, है ना, लाइक दैट्स अ 10 जो भी कर्व होगा और ये जो नॉर्मल है दैट नॉर्मल इज पासिंग थ्रू 2 कॉमा 0, दैट इज द पॉइंट p पॉइंट x कॉमा y, राइट? इसमें नहीं है, कहीं है। तो कैपिटल X को 2 रखा, कैपिटल Y को 0 रखा। अब ये क्या हो गया? माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, कैपिटल X विच इज 2 माइनस एक्स। ठीक है, इट विल बिकम y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। That is the differential equation you are getting, a differential equation. Which form is this? Variable separable form. Y dy is equals to 2 minus x dx. Variable separable form. Simple integration is there. Y square by 2 equals to 2x minus x square by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन। ये कहा गया कि दैट कर्व इज पासिंग थ्रू, ये तो कर्व की इक्वेशन है। नाउ वी आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कर्व की इक्वेशन मिल रही है आपको। नॉर्मल इज पासिंग थ्रू 2 कॉमा 0, तो नॉर्मल 2 कॉमा 0 सेटिस्फाई कर दिया आपने। अब कर्व 4 कॉमा 5 से पास कर रहा है तो ठीक है भाई, कर्व अगर 4 कॉमा 5 से पास कर रहा है, अब यहां पर हम 4 कॉमा 5 सेटिस्फाई कर देंगे। इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 कॉमा 5। x को 4 रखिएगा, y को 5 रखिएगा, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, और कांस्टेंट मिल जाएगा तो यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व। सिंपल। नॉर्मल एट एनी पॉइंट p x, y
is passing through the point 2, 0. Formation of differential equation, solution of the differential equation, passing through the point 4, 5, you got the value of constant there. And then you can decide whether this curve is circle, parabola, ellipse, hyperbola. Now the question is, find the equation of curve passing through the point 1, 2 if slope of tangent to the curve at any point p x, y, slope of tangent at any point p x, y is equal to sum of x coordinate and product of x coordinate and y coordinate. X coordinate and y coordinate of the point. So find the equation of curve. That curve is passing through the point 1, 2. 1, 2 से curve pass कर रहा है. That information is to find out the constant. If slope of tangent to the curve at any point p x, y, slope of tangent does mean dy by dx simply. And that slope of tangent is equals to sum of x coordinate and product of x coordinate and y coordinate. तो इसका सीधा सा मतलब हुआ is equals to x plus xy. बात खत्म हो जाती है. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व करना है, कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं आप. बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर. ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल ही है, तो है ना. आप कहेंगे अरे सर हमने तो लीनियर बना के सॉल्व कर दिया, तो भी रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, उससे परेशान मत होइएगा. dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x dx. That would be ln modulus of 1 plus y is equals to x square by 2 plus constant of that. क्या सभी लोगों ने ऐसे ही किया होगा? कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, तो 1, 2 से कर्व पास कर रहा है. फाइन, x को 1 से रिप्लेस कीजिए और y को 2 से रिप्लेस कीजिए. यू विल बी गेटिंग द कांस्टेंट देयर. कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी और कांस्टेंट आ जाएगा तो यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व. ठीक है. केवल लैंग्वेज जो दी हुई है आपको, जो भी लैंग्वेज है उसको ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन, उसको गलत इंटरप्रिटेशन किया तो गलत रिजल्ट आएगा और उसके कोई मार्क्स भी नहीं मिलने वाले हैं. आपकी चाहे अप्रोच कैसी भी हो, आपकी फर्स्ट स्टेप ही अगर गलत हो जाती है तो फिर बाकी स्टेप्स का कोई मीनिंग नहीं रहता. नाउ द क्वेश्चन इज, अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट p x, y ऑफ अ कर्व and that normal meets the x axis and y axis in the points a and b respectively such that condition is 1 by OA plus 1 by OB equals to 1. 1 by OA plus 1 by OB is equals to 1. O is the origin there. You have to find the equation of such a curve passing through the point 5, 4. इक्वेशन ऑफ कर्व रिक्वायर्ड है जो कि 5, 4 से पास कर रहा है. नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट p x, y ऑफ अ कर्व एंड इट मीट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट्स a and b. This is the tangent, this is the normal. x एक्सिस को a पॉइंट पर और y एक्सिस को b पॉइंट पे मीट कर रहा है. 1 by OA plus 1 by OB, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि OA is nothing but the intercept made by the normal on the x axis and OB is nothing but the intercept made by the normal on the y axis. तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले. y minus y equals to minus of 1 upon dy by dx, or you can write it minus of dx by dy, capital X minus x, right? dy by dx is clearly equals to 1 upon dx by dy. कोई दिक्कत नहीं है. x एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात की गई है. टू फाइंड आउट OA, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट वुड बी 0. y मतलब कैपिटल Y वुड बी 0. ये होगा कैपिटल X, 0. तो कैपिटल Y को 0 रख दीजिएगा यहाँ पर, राइट. तो OA इज नथिंग बट कैपिटल X and that would be equals to कैपिटल Y को 0 रखा आपने. यहीं पर देख लें हम ऑब्जर्वेशन से, माइनस माइनस वुड बिकम प्लस. I want capital X,
Yes, it will be in fact x plus y dy by dx. प्लीज चेक करिएगा ठीक लिखा है हमने. x axis पर intercept y0, capital Y0, small x small y is clearly a point on the curve. P point is x comma y. तो OA x axis पर intercept capital Y0 रखा आपने, माइनस माइनस प्लस y ये dx by dy, तो dy y into dy by dx, राइट. और इस x को शिफ्ट किया आपने, कर सकते हैं. सिमिलरली OB फाइंड आउट करना है आपको. OB इज नथिंग बट y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0, y, that will be capital Y is equals to x0, capital X0 in fact, minus minus plus, okay fine, it is going to be y plus x into dx by dy. चेक कर लीजिएगा. ठीक. Now the given relation in terms of OA and OB is 1 upon OA plus 1 upon OB is equals to 1. So 1 upon OA x plus y dy by dx plus 1 upon y plus x dx by dy is equals to 1. ठीक. If you take the LCM, यहाँ पर देखें तो y dy plus x dx, y dy plus x dx सेम ही आ रहा है यार तो. So if you take the LCM, that will become dx plus dy upon x dx plus y dy, जरूर चेक कर लीजिए, is equals to 1. सी हो जाएगा दोस्तों dx plus dy. अरे भाई इसको टेक द एलसीएम देयर, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं. So it will be dx, it will become same ना, y dy by y into dy plus x into dx और y into dy plus x into dx. That is the reason ना, LCM denominator will become same there. So dx by dx plus dy equals to x dx plus y dy. What you are getting? You are getting 1 minus x into dx is equals to 1 y minus 1 into dy. It is in which form? That's a variable separable form directly. ये तो variable separable form है दोस्तों. Integration किया both sides. That will in fact become x minus x square by 2 after integration is equals to y square by 2 minus y plus constant of that integration. That curve is passing through the point 5, 4. 5, 4 सेटिस्फाई कर दीजिएगा दोस्तों. x को 5 से रिप्लेस कीजिएगा, y को 4 से रिप्लेस कीजिएगा. What value you are getting for c? Anybody is tried? 23 by 2. Okay, चेक कर लीजिए प्लीज. x को 5 से रिप्लेस कीजिए, y को 4 से रिप्लेस कीजिए एंड गिव मी द कांस्टेंट देयर. और अब इसे अरेंज कर लेते हैं जरा. What is that constant please? माइनस कोई एक बता दो. हाँ, माइनस 27 बाय, फिलहाल मैं इसको जैसा वैसे ही रख लेता हूं. इट्स गोइंग टू बी इक्वेशन ऑफ सर्कल. बट सर्कल की इक्वेशन तब होगी जब रेडियस इसकी एक रियल वैल्यू आएगी ना, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. दैट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी पॉजिटिव. सो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा. बात ये, लेकिन आपको अप्रोच समझ में आई या नहीं आई, दैट इज इंपॉर्टेंट. कांस्टेंट की वैल्यू 5, 4 यू हैव केप्ट देयर, यू गॉट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट.
ये तो हमने सिंपल उसको अरेंज किया, राइट। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा इतने डिस्कशन में कि एप्लीकेशन जो भी है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस में जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड नॉट ओनली टेंजेंट्स और नॉर्मल की इक्वेशन, intercept made by the tangent on the x-axis, intercept made by the tangent on the y-axis, intercept made by the normal on the x-axis, intercept made by normal on the y-axis. याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, अदरवाइज याद रखने की आवश्यकता नहीं। आप बहुत सिंपल उसको डिराइव कर लेते हैं, कहाँ समय लगता है, मतलब उसको क्या याद रखा जाए, बट इट इज अप टू यू। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इस पे बात खत्म हो जाती है। प्रॉपरली लैंग्वेज को पढ़ना समझना, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फॉर्म है, सारे फॉर्म आपने पढ़े हैं, वेदर इट इज वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजीनियस और लीनियर और रिड्यूसिबल वाले फॉर्म में बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इट मस्ट बी गिवन, ऐसा कहीं ना कहीं होगा कि इट इज पासिंग थ्रू 1,2 या 4,5, दैट इज टू इवेलुएट द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट को इवेलुएट करवाते हैं, बट आप क्वेश्चन जरूर बना पाते हैं। Application based question, in a culture of bacteria the rate of increase is proportional to the number present. It is found that the number doubles in 4 hours, and by what proportion they increase in 12 hours. In a certain culture of bacteria the rate of increase is proportional to the number present. Rate of increase is proportional to the number present. क्या लिखते हैं आप? Rate of increase is proportional to number present. मैं लिख सकता हूं यहां पर dx by dt is proportional to number present which is x. dx by dt, rate of increase dx by dt is proportional to the number present. dx by dt is proportional to x. एंड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कांस्टेंट जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। या इफ आई राइट dx by dt, that dx by dt would be equals to k times x. पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट जो भी रहेगा, dx by dt is equals to kx. Rate of increase is proportional to the number present. So dx by dt is proportional to x. It is nothing but a variable separable method. dx by x integral of variable separable, simple. एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल बहुत कम है। dx by x ln x is equals to kt plus c. अब ये कहा गया है इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 hours और आफ्टर 12 hours किस प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगे, तो नंबर डबल्स इन 4 hours, मतलब ये कहूंगा मैं कि एट इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 पर लेट्स से जो नंबर है वो x इज इक्वल्स टू x नॉट। इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जो नंबर है दैट x इज इक्वल्स टू x नॉट। 4 घंटे के बाद में आफ्टर 4 hours नंबर डबल्स, x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x नॉट। ये क्यों दिया है? टू इवेलुएट दोस कांस्टेंट्स हियर, और आप इसको लिमिट्स रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू सॉरी x नॉट टू 2x नॉट और ये 0 टू 4 kt, ठीक है, या इधर रख दीजिए इसमें आप। यू विल बी गेटिंग द 2 कांस्टेंट्स देयर। कौन कौन से 2 कांस्टेंट? 2 k और c। ln x नॉट इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 0, 0 प्लस c की वैल्यू आ गई आपकी ln x नॉट। सो ln x इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन एट t इक्वल्स टू 4, या ln x इज इक्वल्स टू kt प्लस ln x नॉट। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो t इक्वल्स टू 4, 4 घंटे के बाद में क्या सिचुएशन हो रही है, ln x की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x नॉट इज इक्वल्स टू 4k प्लस ln x नॉट log m माइनस log n। अब तो यार सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल तो यार केवल इतना ही था इसमें। राइट
log 2 you got the value of that constant also, k की वैल्यू भी आ गई 1/4 log 2, c is available, k भी आ गया, ln x is equals to 1/4 log 2 plus c is ln x naught, very steep high. Okay, that 1/4 log 2 into t, इस इक्वेशन ना, दैट इज द गिवन इक्वेशन. इन फैक्ट गिवन मतलब जो हमने डिराइव करी है इसमें 1/4 log 2 इज द कांस्टेंट प्लस t इंटू टी प्लस ln x नॉट. आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि भैया ये बता दो कि 12 घंटे के बाद में सिचुएशन क्या बनने वाली है, किस प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा. तो आफ्टर t इक्वल्स टू 12 एट t इक्वल्स टू 12 ln x इज इक्वल्स टू 12/3 12/4 3 log 2 प्लस ln x नॉट. ये हो जाएगा आपको इजीली आपको रिजल्ट मिल रहा है. इट विल बिकम x इज इक्वल टू 8 टाइम्स x नॉट, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है उसका 8 टाइम्स हो जाएगा. इतना ही है एक्चुअल में. ये तो कैलकुलेशंस हैं. यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इट्स अ सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी. बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर इंक्रीजिंग, तो वो प्लस साइन लीजिएगा, और इफ इट इज डिक्रीजिंग या पॉपुलेशन के डिक्रीज होने की बात होती है तो टेक माइनस साइन देयर. जैसे हमने देखा था कि इवेपोरेशन की बात थी तो वॉल्यूम कम होता है तो यू हैव टू टेक माइनस साइन देयर. बट बाकी तो जैसा था किया गया था कि इट इज गिवन दैट इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, 4 घंटे में डबल हो रहे हैं. तो इनिशियल वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे इट इज x इक्वल्स टू x नॉट, आफ्टर 4 आवर्स इट इज x इक्वल्स टू 2x नॉट. तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन्स k और c, दो अननोन है, दोनों फाइंड आउट कर लिए हमने 1/1. वही तो किया है यहाँ पर. दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज द वैल्यू ऑफ c. इक्वेशन में पुट कर दिया गया और देखा गया कि आफ्टर 8 आवर्स क्या पोजीशन होगी, तो t की वैल्यू 8 प्लेस कर दिया. सॉरी, आफ्टर 12 आवर्स तो t की वैल्यू को 12 प्लेस किया हमने. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज यू टू सॉल्व, थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहे हैं. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² इज इक्वल्स टू x² प्लस e⁻3x. एक्चुअली इट्स अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. d2y/dx² इट्स अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत एलिमेंट्री फॉर्म है, बट इट इज गिवन इन यूर CBSE बुक्स, और CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल से क्वेश्चंस को देख लें. कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट इज बीन मेंशन्ड दैट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. तो d2y/dx² इज इक्वल्स टू x² प्लस e⁻3x. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर, बट सिंपल, कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पर, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. इट इज नथिंग बट d/dx ऑफ dy/dx, that is the meaning of d2y/dx² there. तो x² plus e⁻3x. डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कर्व. y की इक्वेशन निकालना होगी, कर्व की इक्वेशन निकालना होगी. इट इज d/dx ऑफ dy/dx. रिमूवल ऑफ डेरिवेटिव्स करना होगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में किया इंटीग्रेशन, जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो dy/dx, दैट dy/dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. यहाँ पे तो जब आपने इंटीग्रल किया तो दैट डेरिवेटिव साइन वुड बी रिमूव्ड. इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³/3 प्लस e⁻3x डिवाइड बाय 3. लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन किया गया तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो जरूर होगा यहाँ पर. इट इज इक्वल टू c1. सिंपल. मेरा टारगेट तो भैया कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. बोले सर अब क्या करें, dy/dx इज देयर, आई वांट y. ठीक है, वैल्यू नहीं यार. इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, यही बोला था आपने, बहुत अच्छी बात है. इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन.
So dy by dx is equals to, so it will be y is equals to integral of x cube x raised to power 4 by 4, but 3 is there तो 12 हो जाएगा, प्लस e raised to power 3x by 9 प्लस कांस्टेंट इज c1, c1 का इंटीग्रेशन c1x प्लस c2, दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. बस इतना ही है यार, ये और कुछ नहीं है, बट इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. और कहीं आपको लगे ना कि अरे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो मैंने समझा दिया. क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे वो वैल्यूज दे के रखेगा कि ओके एट एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई एट एक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स, so you'll be getting the constants also, but that is the only differential equation. Second order differential equation is there and it is the solution of that. इंटीग्रेट करना है सिंपली, आपको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे और y के टर्म में रिजल्ट आएगा, इतना ही है. Now look for the second question based on the same approach. Again the second order differential equation is there, d2y by dx square equals to x square plus sin 3x, and it is also given in the question that dy by dx is equals to 1 is equals to y when x is equals to 0, और आपको क्लियर है कि it is given to find out the value of constants. और डेफिनेटली यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर गोइंग टू बी देयर, होना ही चाहिए था. आप जानते हैं, इफ क्लियर है ना, इन द वेरी फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इक्वेशन ऑफ कर्व इन्वॉल्व्स 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल फॉर्म होगी. और सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ जाने वाले हैं. फिलहाल d2y by dx स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें अगर आपको दिक्कत नहीं हो, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, इट इज एक्चुअली d by dx ऑफ dy by dx, so integration with respect to x, it will be dy by dx is equals to x cube by 3 and integral of sin 3x minus of cos 3x by 3 plus कांस्टेंट ऑफ दैट. एट द सेम टाइम देखो एक सीधी सी बात है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, जब x की वैल्यू 1 है, व्हेन x इज इक्वल सॉरी व्हेन x इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ dy बाय dx इज 1. आप इवेलुएट कर पाएंगे, क्या इवेलुएट कर पाएंगे, c1, बाद में भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू. इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, that will be y is equals to x raised to power 4 by 12 minus of sin 3x divide by 9 plus c1x plus c2. अब यार इसमें x की वैल्यू 0 रखिएगा और x इक्वल्स टू 0 पर y को 1 रखिएगा, राइट, और dy by dx को 1 रखिएगा. तो x इक्वल्स बाद में नहीं हो तो उसी स्टेप पे करना पड़ेगा. x इक्वल्स टू 0 और dy by dx को 1 रखने पर यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ c1. x की वैल्यू को 0 रखा आपने, इट विल बी 0, dy by dx इज 1, cos 0 दैट विल बी 1, ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग c1. और नेक्स्ट स्टेप में आप x को फिर से x कीप x इक्वल्स टू 0, y विल बी इक्वल्स टू 1, c1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, c2 आ जाएगा, ठीक है ना. क्या बाय द वे चलिए बताइए दीजिए, c1 की वैल्यू, c1 विल बी इक्वल्स टू 4 by 3. व्हाट अबाउट c2? 1. बढ़िया. Now look for 2 interesting questions so that you can understand one more approach to solve the differential equation. Now the question is x plus ln by dy, x plus ln by dy plus y dx equals to 0. And the second equation is y dx minus x dy plus y square into cos x dx
इज इक्वल्स टू 0। इन दो क्वेश्चंस को देखिएगा। और ये अप्रोच मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया, बोर्ड एग्जाम में ट्राई नहीं कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो भी इक्वेशन होगी इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगी, या फिर इन तीनों में से जो रिड्यूसेबल वाले जो फॉर्म पड़े उनमें से होगी। बट लुक फॉर वन मोर अप्रोच हियर, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज x प्लस एल एन वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को लिखा x dy प्लस वाई डी एक्स प्लस एल एन वाई डी वाई इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दिस x dy प्लस वाई डी एक्स, x dy plus y dx is nothing but d of xy plus ln y dy equals to 0। ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने बना लिया। x dy plus y dx that is nothing but d of xy। जैसे आप पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x dx, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y तो dy। तो यार जैसे इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x जब आप पढ़ते हैं, सुनिएगा इस बात को, पहली बार में पढ़ा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। इफ आई राइट एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आप कहेंगे अरे सर ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अगर मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर डी वाई, आप कहेंगे ठीक है सर, फंक्शन ऑफ y उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आप कर रहे हैं, ठीक है, y क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि इफ इट इज एक्स वाई होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई, तो ठीक है यार, सेम ही तो कह रहा हूं मैं, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। आ रही बात समझ में आपको? तो जब ये दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी एक्स क्यूब बाई 3 plus constant, this will be y cube by 3 plus constant, and it will be xy whole cube by 3 plus constant. So when I write d of xy plus ln by dy equals to 0, that's a variable separable form. That's a variable separable form. कैसे वेरिएबल सेपरेबल? द रीजन इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हर बोले है ही नहीं, क्यों नहीं, 1 है ना, है कैसे नहीं, जरूर है। एक्स वाई रेस टू पावर 0, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, एक्स वाई। प्लस एल एन वाई dy equals to 0। बोथ साइड्स इंटीग्रेशन किया हमने, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई दैट विल बी एक्स वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एल एन वाई डी वाई वाई एल एन वाई माइनस वाई इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट को मत भूलिएगा, इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ln y का इंटीग्रेशन y ln y माइनस y। इट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट? x dy प्लस y dx, बोले सर ऐसे कितने फॉर्म्स हो सकते हैं? ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच फॉर्म्स आर देयर, जहां पे आप उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे तो कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, कई सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच फॉर्म्स। तो बोले सर याद रखना है, याद नहीं रखना है, ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर रहेगा। हाँ, इसको जरूर आप बना के देख लीजिएगा कि इट इज इन विच फॉर्म, लीनियर इन y, लीनियर इन x, होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल dy बाई dx करके सॉल्व कीजिएगा, अभी करके बताइए आप मुझे। लेकिन ओके, दैट इज अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच। लुक फॉर द सेकेंड वन ऑल्सो, y dx माइनस x dy प्लस y स्क्वायर cos x dx इक्वल्स टू 0। तो y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज किया इसको भी हमने, y dx माइनस एक्स डी वाई
अपॉन वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। ब्रदर ऐसा क्यों? देखिएगा, ये तो cos x dx फंक्शन ऑफ x विद dx, वो तो ठीक है, बट इफ यू ऑब्जर्व दिस y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर इज नथिंग बट d ऑफ y बाय x, नहीं, d ऑफ x बाय y, y स्क्वायर कोशेंट का रूल वाली बात, dx माइनस x dy, d ऑफ x y एग्जैक्ट डिफरेंशियल d of xy plus cos x dx equals to 0. That's a variable separable form. Again, function of x by y with respect to x by y and function of x with dx, variable separable form. One का integration with respect to x by y is x by y plus sin x is equals to constant of that integration. That's the approach. Now look for these two questions. देखिए, जो फॉर्म आपने डिस्कस किया, अभी जिन फॉर्म्स को हम यूज कर रहे थे, एग्जैक्ट वाला फॉर्म है ये, और एग्जैक्ट वाले से मतलब ये हुआ, as I have written d of x y, that was x dy plus y dx. If I write d of x by y, that is nothing but y dx minus x dy upon y square. If it is d of y by x, then it will be x dy minus y dx upon x square. मैंने आपसे कहा ऐसे कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं. It could be d of x plus y, that will be dx plus dy. If it is d of x square plus y square, that will be 2x dx plus 2y dy. बट डेफिनेटली आप इसीलिए इससे समझ सकते हैं कि ऐसे तो कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं. If I solve the first question, 2 times x minus y sin 2x dx plus 3y square plus cos 2x dy, और आपको जो भी ये फॉर्म्स आने वाले हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंट फॉर्म, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस ढंग से हम बात नहीं कर पाएंगे. उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होता है, तो हम डायरेक्टली जो एग्जैक्ट के फॉर्म में रिड्यूस हो पा रही है, एक जहां एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बन रहे हैं वहीं पर हम बात कर लेते हैं. इट विल बी 2x dx, और ये जो भी फॉर्म्स आने वाले हैं ये सबके सब वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस होंगे. 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy, ठीक है, 3y स्क्वायर dy माइनस 2y साइन 2x dx प्लस cos 2x dy इक्वल्स टू 0. रीअरेंज किया था, बोलिए. और उसमें भी ये बात तो समझ में आ रही है कि दैट्स अ फंक्शन ऑफ x विद dx, दैट्स अ फंक्शन ऑफ y विद dy. तो सर ये कुछ गड़बड़ सा है, देखें जरा. 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy, and if you observe this carefully, minus 2y sin 2x dx plus cos 2x dy equals to 0. इसे लिखा जा सकता है cos 2x. समझे जरा हम, ये ऑब्जर्वेशन वाला गेम है. देखो cos 2x का जो डेरिवेटिव होगा, cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 sin 2x, माइनस 2 sin 2x, ये y है और यहां dy, ठीक है, प्लस d ऑफ y cos 2x dx इज इक्वल टू 0. चेक करिएगा, cos 2x dy प्लस
y डेरिवेटिव ऑफ cos 2x माइनस 2 sin 2x dx, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल d ऑफ y cos 2x। इसलिए तो मैंने कहा देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। इट इज अप टू योर ऑब्जर्वेशन जिसमें आप सोच पाते हैं ढंग से, लेकिन ये क्वेश्चंस को काफी सिंप्लीफाई कर देगा कई सारे केसेस में। बोले सर ये कौन सा फॉर्म है? दैट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फंक्शन ऑफ x विद dx, फंक्शन ऑफ y विद dy एंड फंक्शन ऑफ y cos 2x विद रेस्पेक्ट टू y cos 2x। इट्स अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इट विल बी 2 into इंटीग्रल ऑफ x dx 2x square by 2 plus 3 times y cube by 3 plus इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू y cos 2x। तो y 1 का इंटीग्रेशन y cos 2x के रेस्पेक्ट में, y cos 2x is equals to constant of the integration, that is the solution of that differential equation। clear है? but yes, it is up to your strict observation। try to solve the second one also। now look for the second one। so it can be written as y dx plus x dy, है ना, 1 into y dx और ये 1 into x dy, तो y dx plus x dy तो क्लियर है, that will become d of xy, but remaining two terms it is actually xy square dx minus of x square y dy equals to 0। ठीक, this y dx plus x dy can be written as d of xy, but what can be done for these two terms? क्या किया जा सकता है यहां पर? यू कैन टेक एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। इफ आई टेक एक्स वाई कॉमन देयर, इट विल बिकम वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए? y बाय एक्स, यहां पर अगर आप देखें तो y dx माइनस एक्स डी वाई, तो y dx माइनस एक्स डी वाई को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इफ यू डिवाइड बाय y स्क्वायर इट विल बिकम d ऑफ x बाय y। तो पर उसके लिए आपको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली बात हो गई। कुछ जंप आएगा? करिए करिए प्लीज। y dx माइनस एक्स डी वाई विल बिकम d ऑफ x बाय y प्रोवाइडेड you will have to multiply and divide by y square for that। y square से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा या पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करना होगा? ये y स्क्वायर से डिवाइड किया, देखें जरा क्या होता है। ठीक है, बोले सर अब क्या किया जाए? अबे हो गया भाई, d ऑफ एक्स वाई, ये तो आपको समझ में आ गई बात की सर ये तो बनने वाला है d ऑफ x बाय वाई, और यहां पे d ऑफ एक्स वाई, पूरा अरेंजमेंट वाला गेम है। d ऑफ एक्स वाई को मैंने ऑब्जर्व करते हुए कि यार फंक्शन ऑफ एक्स वाई बना लें। फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स बनाने के लिए इसको जरा एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर देते हैं। नाउ इट बिकम्स 1 अपॉन एक्स बाय वाई होल स्क्वायर d ऑफ एक्स वाई प्लस y by x d of, this is y by x, it is becoming what? x by y is equals to 0। बोले सर गड़बड़ हो रहा है, ये y by x है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x by y आ रहा है, तो भैया उसको x by y रेस्ट टू पावर माइनस 1 लिख दो ना, क्या दिक्कत है? आ रही बात समझ में आपको? सो ये तो हो गया काम, 1 अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर एक्स वाई रेस्ट टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये वाई बाय एक्स है और ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाय वाई। बना सकते हैं ना आप इसको, यू कैन राइट इट 1 अपॉन एक्स बाय वाई, फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई के टर्म में लिख दीजिए इसको।
चलिए हम लिख देते हैं इसको, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आएगा 1 अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ x by y raised to power minus 1 with respect to x by y is equals to 0. इंटीग्रेशन जब आप करेंगे एक्स वाई रेस्ट टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस यस ln ओके प्लस दैट इज द रिजल्ट देयर. बट उठापटक यहाँ है. मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली हो जाएंगे और कुछ होंगे जहां पे आपको काफी सोच के सॉल्व करना होगा.